Good evening, everyone. I'm Neha, along with my co-host Om Palve. Warmly welcome you all in the Intern Talks 2020-24, organized by SP IIT ISM Student Chapter and PP IIT ISM Student Chapter. We are honored to have with us today our respected seniors, Ayush sir, Anmol sir, Satvik sir, and Tarang sir, who through their dedication and hard work have secured internships at prestigious oil and gas companies such as Baker Hughes, ExxonMobil, Sota OG, and Reliance Industries Limited. Thank you, seniors, for joining us today. So, without further delay, let's begin the session with our first question. So, seniors, our first question is what were the company's CGPA requirements? Was there a minimum CGPA cutoff? देखो, बेकर का तो उसने सबसे पहले जो शॉर्टलिस्ट लगाया था 8 पे लगाया था। 8 के ऊपर ही शॉर्टलिस्ट किया था उसने। तो आई विल रिकमेंड कि 8 के ऊपर तुम लोग सेफ हो। 8 is a safe point. Talking about Exxon, like it was, I guess, the first company that got registered in our batch. Day zero, day one, May, it was the company that got registered. Day one, I guess, yeah, as far as I remember. Kane got registered earlier, but it came afterwards in January itself. So the cutoff criteria for ExxonMobil was 7. Yeah. So beyond So that, it was chill. yeah, so for Sotaoji it was the highest, like it was 8.5. Actually, it's an American company, so like they are quite strict about the CGPA criteria for the shortlisting round. Tarang, continue. कर. तो रिलायंस के लिए सीजीपीए क्राइटेरिया तो जो था वो 6 था और फर्दर जो ओएलटी राउंड था उसमें भी कोई सीजीपीए का इम्पोर्टेंस इतना था नहीं शॉर्टलिस्टिंग वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सीजीपीए so above 6 is safe. So thank you, sir. So the next question I would like to ask you is that, sir, typically, like all of you seniors, they were like from Petrobras for each company, you were like one or two, like so you were very unique. Like Thakur Satvik sir also got, or was the only one within petroleum engineering that got placed on day one, and Ayush Pratap Singh sir also was a single one who got placed in Sotaoji. So did it make you feel special that you were the only one placed in that particular company? Means interned at that particular company. So I'll take it first. Talking about the uniqueness or speciality, I'll tell you to like never overestimate yourself. That will be the first thing. तुमको नहीं मालूम है कि कंपनी की क्या requirements है, and on the basis of the requirements of the company you are selected. And it felt good obviously when I got that offer, but it doesn't make a sense to me like if I'll tell कि यार मैं तो बहुत यूनिक हूँ, मैं बाकी में सबसे अच्छा था इसीलिए हो गया. Doesn't make any sense like that. It was कि what aligns well with the company's requirement. तो जो आए हैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए, they'll assess you on different parameters and on the basis of their requirement they will select you. You don't need to focus on एक बार if you are able to have cleared that initial shortlist round कि तुम्हारा CGPA वाला shortlist clear हो गया, resume shortlisting हो गई है, you have cleared your OLTs or whatever GDs are there, whatever the preliminary rounds are there, वो सारे के सारे clear हो गए and you now right now you're in the interview, then it's just be yourself. खुद को मत overestimate भी मत करो, underestimate भी मत करो. ऐसा मत सोचो कि तुम स्पेशल हो, एक ही को लेके जाएंगे एंड दिस टाइप ऑफ थिंग. बट हाँ, ऐसा भी मत सोचो कि नहीं ही होगा मेरा. सो बीच का कुछ एक रखो, एक पॉजिटिव आउटलुक रखो उसके तरफ. दैट्स इट. दैट विल बी इनफ. दैट्स इट. Yeah, I'm completely agree with Thakur. Like पहली सोटाओजी पहली बार ही आई थी वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के लिए. एक्चुअली वो पहले आती थी बट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग रोल्स के लिए आई हुई थी. वो मैकेनिकल एंड सीएससी वालों को हायर करती थी. सो मेरा ही फर्स्ट टाइम ही था तो कोई पूछने वाला था नहीं कि किससे पूछूं कि कैसा क्या पूछेगी क्या नहीं. तो फर्स्ट आई थॉट लाइक कि पहले तुम देखो तो जॉब डिस्क्रिप्शन देखो. कोई भी कंपनी आई है रजिस्टर किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ, क्या चाहती है वो कंपनी, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. सेम चीज वही पूछेगी वो इंटरव्यू पे और उस पर ही फोकस करो, उस पर ही क्वेश्चन आएंगे. मेरे में यही हुआ सेम चीज. वो नोडल एनालिसिस पे वर्क करती है, एमएल मॉडल्स, प्रेडिक्शंस और बॉटम होल प्रेशर्स एंड पी बाई जी करेक्शन गैस वेल्स. सो मैंने वही पढ़ा एंड एग्जैक्टली उन्होंने मुझसे वही चीजें पूछी, लाइक नॉट फ्रॉम एनी अदर टॉपिक. सो वही चीज है कि तुम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो चीजों को लेके और हार मत मानो भाई कि अगर 5th सेम में नहीं हुआ तो 6th सेम में भी कंपनीज आती हैं. हमारे टाइम पे केन सारी कंपनी आधी कंपनीज वही 6th सेम पे ही आई थी.
तो लगातार लगे रहो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो। ऑफ कैंपस वैसे चांसेस होते नहीं है पेट्रोलियम पे, बट करते रहो, मतलब एक एक्सपीरियंस मिलेगा भाई कि हाँ ये ऐसी ऐसी कंपनीज यहाँ पे हैं, यहाँ यहाँ करना है। तो देखो और एक चीज भी मैटर करती है कि एग्जैक्टली जैसे ठाकुर ने बोला कि कंपनी को क्या चाहिए, और ये चीज भी वो लोग देखेंगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कंपनी वैल्यू से कितना ज्यादा अलाइन करती है। अगर तुम उस अपने कंपनी के हिसाब से थोड़ा प्रिपरेशन करो, अगर जैसे एक कंपनी आ रही है तो फोकस ऑन दैट कंपनी कि वो किस में इन्वेस्ट कर रही है, वो किस में अपना नया प्रोस्पेक्ट ढूंढ रही है, और फिर उसके इंटरव्यू में बैठो। तो उससे क्या होगा ना, लाइक जब भी तुम बात करोगे तो अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आते हैं कंपनी रिलेटेड, वो तुम आंसर कर पाओगे rather देन योर कोर नॉलेज। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में भी थोड़ा पढ़ना एक कंपनी के इंटरव्यू में बैठने से पहले, कि वो अभी क्या कर रही है। एक्चुअली तो जो रिलायंस का सीन था वो ऐसा था कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग तो सबका हो गया था जिनका अबाउ 6 था, बट द मेन पॉइंट वाज गिविंग ओएलटी। सो ओएलटी में 4 सेक्शन थे, वन आउट ऑफ दैट 4 ओनली वन वाज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, अदर 3 वर, वन सेक्शन वाज इंग्लिश, वन वाज एप्टीट्यूड एंड थर्ड वाज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसमें 10 तक तुमने जितनी साइंस पढ़ी है एंड जो जनरल साइंस होती है उसके क्वेश्चन थे। सो इंग्लिश में भी ऐसा था कि एक कॉम्प्रहेंशन था एंड उसके 4 अदर क्वेश्चंस थे, फिर दूसरा कॉम्प्रहेंशन उसके 4 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड में लाइक 30 मिनट्स थे तुम्हारे पास एंड 30 मिनट्स में तुम्हें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। पेट्रोलियम में टाइम बहुत ज्यादा था, क्वेश्चन भी मतलब टाइम और टाइम लिमिट पेट्रोलियम में इतनी ज्यादा मैटर कर नहीं रही थी, बट इन एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश टाइम लिमिट बहुत मैटर कर रही थी। और बस यही था। Thank you, seniors. Our next question is, please describe the first round of the interview process. Was it a qualifying or eliminating round? So I would go first. Like the first round of the interview process was a resume shortlisting. This was an eliminating round. मतलब जितनी भी सीवी गई थी उसमें से हम लोग 3 या 4 लोग ही शॉर्टलिस्ट हुए थे आई गेस। तो बिकॉज वो लोग सारे सीजीपीए पे फोकस कर रहे थे, तो उतना 3-4 लोगों का ही था हमारे टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने लाइक और सी लाइक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई 3-4 बेसिस पे थी। लाइक सीजीपीए देख रहे थे, उसके बाद अगर तुम्हारा सीजीपीए थोड़ा सा कम भी है, वो 8.4 भी है, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स जो तुमने डाले थे वो इवेल्युएट कर रहे थे। और उसके बाद तुम्हारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, लाइक तुमने समर ट्रेनिंग कर रखी है या फिर कैसा क्या है, तो वो लोग वो देख रहे थे। लाइक तीनों को मिला के उन लोगों ने जो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग की थी 3-4 लोगों की, उसके बेसिस पे की थी। तो यार देखो बेकर का तो ऐसा था, 8 के ऊपर सबका हो गया था रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट। फिर एक डिजिटल इंटरव्यू था, उसमें बेसिक तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट होती है, वो वीडियो से ही होता है, लाइक वीडियो एक रिकॉर्ड करके भेजते हो तुम लोग। तो उसमें भी सबका हो गया था। आई गेस जो मेन एलिमिनेटिंग राउंड था वो था पहला टेक्निकल राउंड, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम के अलावा और बाकी सब कुछ पूछ लिया था पेट्रोलियम के साथ साथ। जैसे कि अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है तो प्रोजेक्ट के ऊपर है ना, मतलब बात हुई थी। अगर तुम्हारे जैसे बेसिक साइंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस किया था उन लोग ने, जैसे कि फिजिक्स न्यूटन्स के लॉ ऑफ क्वेश्चंस मोशन। पूछ रहे हैं। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और उसमें अगर तुम लोग थोड़ा सा भी फंबल मार रहे थे तो वो चढ़ जा रहे थे तुम लोगों पे। तो हाँ, बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो एकदम सरफेस लेवल से दे विल गो डीप इन द 15 मिनट्स, आफ्टर विच तुम्हारा टेक्निकल राउंड ओवर हो जाता है। आई गेस उसी में ही सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ था। उसके बाद हाँ ऑब्वियसली एचआर राउंड हुआ था, उसकी लाइक बाद में बात करेंगे उसके बारे में कि क्या क्या हुआ उसमें, बिकॉज उसमें किस बेसिस पे लोगों को लिया है ये मुझे भी नहीं पता, एंड शायद कोई बता भी नहीं पाएगा। सो दैट्स इट। Okay, so like for example, like, am I audible, right? I guess my screen froze. Yes, sir. Okay. So it was like there are 81 students in my batch. So out of those 81 students, around 65 applied for the company. पहला जो resume shortlisting हुआ था उसके बाद around 33 were in the first round. After that we had our OLTs and stuff. OLTs के बाद हमारे 12 लोग बचे थे that went for GD, and फिर 12 में से 6 बचे थे in physical interview, like that was the personal interview, and like I got the offer at the end. तो
काफी हेक्टिक प्रोसेस रहेगा ऐसा, जो लास्ट का 3 चीज रहेगा, लाइक आफ्टर योर OLT, GT एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये तीनों एक ही दिन होंगे लगातार, फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल। तो वो काफी हेक्टिक रहता है, तो यू शुडंट लूज योर कूल। और हाँ, द थिंग इज, फॉर ईच कंपनी दैट आई नोटिस्ड ऑल ओवर, आई बेकर ह्यूग्स, सोटाउजी, केन, कोई भी कंपनी आई, दे ऑलवेज ट्राई टू एलिमिनेट पीपल। तो वो एलिमिनेशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि लाइक दे ट्राई टू रिमूव एज मच पीपल एज दे कैन, सो दैट्स द थिंग। ओके, सो रिलायंस के लिए तो लाइक बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में अगर सबसे कम हेक्टिक किसी का सिलेक्शन प्रोसेस था तो आई गेस रिलायंस ही था, बिकॉज सिलेक्शन वाज ओनली बेसिस फॉर द वन टेस्ट। सो हुआ ये था कि हम 30 लोगों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड 30 लोगों का सीडीसी में एक टेस्ट अरेंज हुआ था। इंटरव्यू राउंड शेड्यूल्ड था आफ्टर द टेस्ट, बट क्योंकि हम 2 ही लोगों का शॉर्टलिस्टिंग हुआ था आफ्टर OLT, सो एचआर ने भी मटिया दिया था इंटरव्यू और हमें फाइनल ऑफर आ गया था जस्ट आफ्टर द टेस्ट। सो एलिमिनेशन राउंड वाज नॉट द फर्स्ट राउंड, रेज्यूमे सबका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, बट इन सेकेंड राउंड लाइक वहां पे बहुत कम लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, लाइक ओनली 2 or 3 पीपल विल गेट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो अगर तुम लोग के टाइम पे इंटरव्यू होता भी है तो हार्डली वो लोग 4-5 लोगों को ही टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट करते हैं, सो इट वाज हैवी। So, thank you, sir. Thank you so much for the deep explanation of all the interview process. Sir, next question I would like to ask you is that, sir, as everyone knows and everyone tries, especially from petroleum industry, is that gate P, everyone, like AIR1 or AIR2 or AIR10 is from our college itself. So Ayush Pratap Singh, sir, you also got AIR 88. So would you like to give us some insights that what was your motivation for giving gate and how did you study for that? सो टू बी ऑनेस्ट, लाइक मेरा कुछ ऐसा प्लान था नहीं गेट का। एक्चुअली हमारे सीनियर थे प्रियांशु राज सर, तो उनने बोला था मेरे को कि भाई भर देना एग्जाम, अगर पढ़ रहा है तू अगर उसके लिए तो भर देना। तो मैंने कहा ठीक है भर देते हैं। अब मेरे को अभी याद है, लाइक उस दिन शायद अपने कॉलेज पे फेस्ट था और शान आ रहा था उस दिन, 4 तारीख को अपना था और उस ड्यूरेशन में मेरा इंटरव्यू प्रोसेस भी चल रहा था। मतलब सोटाओ जी का जो वो था उसमें बहुत लंबा प्रोसेस था, वो 15 दिन से 20 दिन के बीच चला था। लाइक एक टास्क दिया गया था, बहुत टफ टास्क था, वो फटी पड़ी थी उसको करने में। उसके बाद 3-5 दिन में 2 इंटरव्यू राउंड थे और उसके पहले भी तो काफी लंबा प्रोसेस था। उसके बीच में ही मेरे को गेट देने जाना था, तो शायद अनमोल भी था साथ में। तो ऐसे ही फिर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, जस्ट बेसिक्स जो इंटर्नशिप के लिए पढ़ रहे थे वही पढ़ा। और फिर हम लोग जस्ट ये हुआ कि चलो देने, उस दिन 2:30 बजे से पेपर है और मैं 11 बजे उठ रहा हूँ सो के, ऐसा था। बस जल्दी जल्दी गए, वो भी कॉलेज की बस में गए, दे दिया जस्ट। और फिर ये था कि हाँ वो 3 घंटे फिर अच्छे से समझ आ रही थी चीजें, क्योंकि वो पढ़ी हुई थी इंटर्नशिप के लिए। तो वो चीजें दिख रही थी कि हाँ भाई की है, और हिट कर रही थी दिमाग में कि भाई ऐसे होगा, तो करते रहे। एंड वो हो गया लास्ट में, मतलब मार्क्स आ गए ठीक ठाक से। मतलब मेनली ऐसा होता है कि तुम्हें एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स आती है 25 में 25 नंबर की, 75 का तुम्हें शायद पेट्रो आता है। तो तुम्हें 25 में 25 मार्क्स का मेरा शायद मैथ्स एप्टीट्यूड सारा सही था, तब मेरा वो रैंक बढ़ गई। शायद पेट्रो में थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स थी, लाइक बहुत गंदी वाली सिली मिस्टेक्स थी जो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा था, कि मैं ओरली कैलकुलेशन कर दे रहा था, लिख रहा ही नहीं था कैलकुलेटर से वो। तो उसमें थोड़े से मार्क्स कटे, वरना 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते थे। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। बाकी अनमोल भी शेयर कर सकता है, शायद इसने मुझसे अच्छी प्रिपरेशन की थी आई गेस। काफी टाइम लगा था, इसके पास टाइम था बेकर यूजर्स के बाद। नहीं, मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं की थी, मैं ऐसे ही भर दिया था बस। मैं तो बहुत ज्यादा चिल मार के गया था। ऐसा था कि मेरे को बेसिक फॉर्मूलाज, विस्कोमीटर के क्या क्या फॉर्मूला होते, थीटा 60 माइनस थीटा 300 वो वो सब याद नहीं आ रहे थे। वो मैं मेरा भी गलत एपीआई हुआ था। ग्रेविटी मैं एपीआई ग्रेविटी का फॉर्मूला भूल गया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें करके आया हूँ मैं गेट में। और एंड गेट में सच मैं बताऊं तो जिस दिन शान आया था उस दिन रात को हम पार्टी करके सोए थे। जैस्पर से लौटा था मैं 4 बजे। और मेरे को याद है। ऐसा था कि अगर उठ गया तो जा रहा हूँ गेट देने या फिर नहीं। तो चलो फिर भी मेरी रैंक तो इतनी कुछ खास आई नहीं। तो हम लोग का ऐसा ही था, मैं अनमोल और आशुतोष था शायद साथ में, 3 लोग थे हम लोग, हम्म। 3-4 लोग। हम लोग का ऐसा था कि जल्दी अगर पेपर खत्म होने देंगे तो जल्दी 2-2.5 घंटे में करके ही वापस आ जाएंगे। बट वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे, वो लोग कर रहे थे 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग सोचे चलो पेपर आए गए हैं तो पेपर कर देते हैं। तो फिर चला गया अच्छा। बट ये है कि हाँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे, बेसिक्स तुम क्लियर रख लो तुम्हारा हो जाएगा।
यू कैन लाइक सिक्योर ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 इफ माय बेसिक्स क्लियर हैं सारे। और हम लोगों के पेपर में क्या हुआ था, जियोलॉजी वाला और जियोफिजिक्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ कम से कम हाँ 15-20 नंबर का वो आया था, वो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था किसी के। जो एग्जैक्टली मार्क्स, वो एक ऑफशोर वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आए थे तो वो हाँ नहीं हर कर साल पाए 3 थे। क्वेश्चंस आते थे ऑफशोर का, तुम लोग 7 सेमेस्टर में पढ़ोगे, और उस टाइम पे हमारे टाइम पे 5 क्वेश्चंस आए थे, और उसमें भी 3 न्यूमेरिकल्स थे, तो वो तो बनने ही नहीं थे किसी से, तो खाली छोड़ रहे थे सारे। तो वही था, जितना आता है उसमें फोकस करो, और तुम मैथ्स और एप्टीट्यूड में सारे बन जाते हैं 25 में 25 के, तो वो चीज करो, हो जाएगा। मतलब पहले तो इंटर्न का फोकस करो, गेट तो बात की बात है, वो हो जाएगा अपने आप, ऐसा बोलूंगा मैं। और गेट आइल से कि थर्ड ईयर में एक बार दे देना बस फील हाँ लेने के लिए, फिर अगर तुम चाहो तो फाइनल ईयर में दोगे ही गेट। अगर मतलब चाहो एनजीसी में जाना तो सब कोई चाहेगा ही, तो दे देना 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार बस ऐसे ही मस्ती मारने के लिए, दूसरी बार सही से देना। हाँ, मतलब इतनी मस्ती मत मारना जितनी हम लोग मार के गए थे देने। बाकी अनुज ने शायद दिया था अच्छे से, तो अनुज का अच्छा आया भी, उसका 54 या 56 था शायद, कुछ उसने पढ़ा था उसके लिए, प्रॉपर पढ़ा था भाई ने। मैंने दिया नहीं था भाई, डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम माय साइड। यू कैन कैरी ऑन। सेम भाई, गेट नहीं दिया हमने। मैंने भी आगे, नहीं दिया था भाई, वो आगे बढ़ सकते हो। शान was more Thank important. you, seniors. Seniors, our next question is: was there a group discussion in the internship recruitment process, or if so, please briefly explain the topics. Yeah, so for ExxonMobil, there was a group discussion round. So in general, I'll tell how to prepare for a group discussion. Like there can be two topics, two generalized topics. Okay. एक तरीके के टॉपिक्स हो जाएंगे जो तुम्हारे हुए सब्जेक्टिव टॉपिक्स, बी इट ऑन सोसाइटल डेवलपमेंट और कोई current affairs types of like topics like this, be it on women empowerment or caste differences या किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। दोज आर लाइक जिसके ऊपर कुछ भी कंट्रोवर्सी हो सकती है या कोई इंफॉर्मेशन है जिसको तुम शेयर करना चाहते हो। It's about the past events that you're trying to explain in front of them, or you can take references. They can be related to the tech developments that are happening. It can be related to generative AI or any sort of topics like that. So for my group discussion, I remember it was related to data privacy. So it was some sort of a subjective topic, but also you can have some sort of abstract topics for group discussion. मतलब मुझे अपने सीनियर से एडवाइस मिली थी कि दोनों तरफ प्रिपरेशन रखना, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स का भी आने का उतना ही चांस होता है जितना ये सब्जेक्टिव टॉपिक्स के आने का चांस होता है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स माइट बी दे कैन टेल यू टू टॉक अबाउट पाई और ब्लू और ग्रीन और स्काई वाटर, कुछ भी टॉपिक हो सकता है। तो उसमें दे ट्राई टू चेक योर विट कि तुम कितना जल्दी बता सकते हो, तुम्हारा रेपो कैसा है, तुम कितना जल्दी स्पॉन्टेनियसली सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो, किस डायरेक्शन में तुम्हारा थॉट जा रहा है। दे ट्राई ना जज यू ऑन दैट। But yeah, for my case, I was lucky. I got a subjective topic like data privacy, and try to start the GD. That will be the first important like thing that I'll try to tell. And एक चीज ये भी important है कि अगर start नहीं कर पाओ तो झगड़ा मत करने लगना वहाँ पे। Yeah, so that's really important कि अपना मत दिखाने लगना कि यार मैं तो मुझे ही start करना है या मुझे ही बोलना है। Try to listen to others. Try to jot out points. समराइज करने की कोशिश करो, दूसरे के वैल्यूज को भी सपोर्ट करो। बी अ गुड लिसनर आउट देयर, जब तुम्हें मौका मिले तब सही से बोलो। दैट्स द की टू इट। एंड दैट वाज आवर जीडी। इट वाज अराउंड हाउ मच टाइम, 20 minutes, 20 to 22 minutes as far as I remember. That's it. That was the GD round for ExxonMobil. So like there is no ZD round in Sota OG, but I can share my experience. Like मैं भी ठाकुर और मैं सेम ग्रुप पे ही थे एग्जॉन मोबिल, मैं भी फाइनल राउंड पे था उसके। तो आवर टॉपिक वाज, मेरे को अभी भी याद है, प्राइवेसी इज अ मिथ इन द टुडेज डिजिटल वर्ल्ड, ऐसा कुछ था शायद, जितना मेरे को याद आ रहा है। तो फिर हाँ यही था, हाँ हाँ, ऐसा ही था और कुछ। 15-17 ऐसे ही कुछ चला था, 15-16-17 मिनट चला था। और हमारे में तो भाई मतलब हमारे ग्रुप में 2 ग्रुप्स थे एग्जॉन मोबिल पे, हम लोग 12 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, 6-6 के ग्रुप्स बने थे, मैं और ठाकुर एक में ही थे। तो उसके बाद दूसरा जो हमारा वाला ग्रुप तो बहुत अच्छे से चल रहा था, टू बी ऑनेस्ट, की बहुत आराम आराम से, पहले ठाकुर ने स्टार्ट किया था आई गेस, या किसी और ने स्टार्ट किया था नहीं मुझे सेकंड में। मन था स्टार्ट करने का, बट मुझे बोलने नहीं दिया था तो मैंने अच्छा, म्यूट कर लिया था। तूने सेकंड में बोला शायद, मैंने थर्ड पे बोला, तो मैंने इसके जस्ट बाद हाँ, बोला था ऐड करते, मेरे को याद है। उसके बाद जो दूसरा वाला ग्रुप था उसमें तो भाई लिटरली जो इंटरव्यूअर आया तो उसको शांत कराना पड़ा था कि भाई शांत हो जाओ, अब हम यहीं खत्म करते हैं। और हमारे ग्रुप से 5 लोग शायद सिलेक्ट हुए थे, और उस ग्रुप से 1 या 2 ही लोग सिलेक्ट हुए थे। दैट्स वाज द रीजन, लाइक वहां बहुत ही ज्यादा सब्जी मंडी बना दिया था कि भाई मैं बोलूंगा, पहले लड़ाई करने लगे थे भाई लिटरली।
ये तो गलत चीज बोल रही हो। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब दूसरे को चांस दो, ट्राई टू लाइक स्पीक फर्स्ट, कि तुम बोल पाओ। और पहले बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हो। लाइक तुम्हारे पास एक पॉइंट्स लिखे जाते हैं कि तुम्हें एक टॉपिक दिया जाता है और उसके बाद तुम्हें 2 मिनट दिए जाएंगे या 1 मिनट देते हैं, उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम चैट जीपीटी करने लगे, कुछ लोग करते भी हैं, बाकी इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। और उसके बाद तुम्हें पॉइंट्स लिखने होते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स पे तुम बोलोगे, बोल पाओगे तुम, तो अगर पॉइंट्स होंगे तुम बोल लोगे फॉर श्योर। तो तुम्हें पॉइंट्स लिखने होते हैं। अब तुम पॉइंट्स लिख के अगर तुम कंप्लीट श्योर हो कि तो बोल लोगे तो फर्स्ट स्टार्ट कर दो, वरना तुम सेकंड थर्ड भी स्टार्ट कर दे, तुम्हारा हो सकता है सिलेक्शन। ऐसा नहीं है पहले स्टार्ट करने वाले का ही सिलेक्शन होना है, बट ऐसा ही तुम किसी की बात मत काटो। अगर कोई बोल रहा है तो हाँ, यू विल गो फर्स्ट प्लीज। सो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि हाँ भाई, कि अगर तुम किसी मीटिंग में होगे, कंपनी की मीटिंग में, या फिर अगर तुम बाकी इंटर्न्स के साथ आओगे कभी, तो थोड़ा अच्छा बिहेव करोगे। तुम्हारा बिहेवियर भी देखते हैं, एटीट्यूड भी देखते हैं, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हें बात काटने वाला एटीट्यूड नहीं। तुम डिसएग्री कर सकते हो सामने वाले से, बट ऐसा नहीं कि भाई नहीं तू तो गलत ही है, मैं तो एग्री करता ही नहीं हूँ तुझसे। तो ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, आई एम लाइक नॉट कम्प्लीटली एग्री बट दिस कैन हैपन। बहुत सारी चीजें होती हैं बोलने की, सो यू कैन डू दीज स्टेप्स। लाइक एक और चीज जो शेयर करूंगा मैं, वो ये है कि जो तुम लोग का जीडी होगा, इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे तुम्हारे दोस्त ही हो वहाँ पे, राइट? तुम्हारे डिपार्टमेंट के अलावा भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए कंपनी खुलेगी, एंड नॉट इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिग्रीज के लिए खुलेगी। तो हमारे ग्रुप में अगर मान लो कि 6 लोग हैं, तो उसमें मैं और आयुष हैं, या जान पहचान के 2-3 लोग हैं, तो इट वाज क्वाइट वेल कोऑर्डिनेटेड कि मैं इसकी बात नहीं काटूंगा या वो उसकी बात नहीं काटेगा। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सेम डिपार्टमेंट में। बट चीज ये है कि हो सकता है कि तुम्हारे साइड वाला कोई एमएससी टेक का हो, या कोई एमटेक का हो, या कोई सिविल का बंदा है, या कोई केमिकल का है, या कोई मैकेनिकल का है, तुम किसी को पहचानते नहीं हो, तो वो ये सब नहीं सोचने के लिए बैठेगा। सो यू डोंट हैव टू लूज योर कूल। तुम जो सोच के गए हो, स्टिक टू योर प्लान। हो सकता है कि वो रूड बिहेव करे, बट जस्ट स्टिक टू योर प्लान। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो मतलब बैचमेट भी तुम्हें काट सकते हैं और बैचमेट भी झगड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं एसएलवी के जीडी में था, तो हमारा पैनल बहुत डर्टी हो गया था और हम सब बीटेक वाले थे, बीटेक पेट्रो, हमारे बैचमेट ही बोलने ही नहीं दे रहे कोई। हमारा टॉपिक था ग्रीन ब्लू ऑरेंज, ये हमारा टॉपिक था। तो हम लोग आधा जीडी हो गया एंड बीच में 3 लोग एक साथ बोल रहे और तीनों नहीं रुक रहे, तीनों कंटिन्यूअसली फ्लो में बोल रहे, और जो जीडी ले रहा था उसको समझ ही नहीं आ रहा कौन बोल रहा है। तो उसने वहीं पे जीडी रोका और फिर हमको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए, फिर नया टॉपिक दिया और फिर से जीडी स्टार्ट हुआ था हमारे पैनल का। तो बैचमेट भी काटेंगे भाई, बैचमेट नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बोलने भी नहीं देंगे कुछ कुछ। बट अगर तुम किसी दूसरे, एक पॉइंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जीडी में, कि अगर तुम अपने कोई बैचमेट जैसे उसने बहुत देर तक बोला नहीं, तो तुम अगर उसे चांस देते हो बोलने का, तो यू मे गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ। ये एक चीज होती है। मैं तो किसी जीडी में बैठा नहीं हूँ, क्योंकि एग्जाम में मैंने अप्लाई नहीं किया था और एसएलवी केन के पहले बेकर आ गई थी। लेकिन हाँ, केन के लिए जब जीडी सब प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं भी था, उनको हेल्प कर रहा था। तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर कोई टॉपिक है और तुम उस पर शुरुआत कर रहे हो, तो तुम्हें उस टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके शुरुआत करना। वरना तुम अगर शुरुआत में ही एक गलत डायरेक्शन में ले जाओगे डिस्कशन को, तो वो तुम्हारे नेगेटिव पॉइंट्स में जाएंगे। और अगर तुम शुरू नहीं भी कर रहे हो एंड पैनल का एक चीज की तरफ डिस्कशन जा रहा है, ट्राई टू बी यूनिक। तुम पैनल को एक ऐसी चीज के बारे में बताना, अपना आइडियाज ऐसी चीज के बारे में बताओ जिसके बारे में लोगों ने कभी उस टाइम तक लोगों ने बात नहीं किया है। और तुम हमेशा ये ट्राई करो जो डिस्कशन जो वो तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले चीजों में कंटिन्यू करे, और कम बोलो, लाइक पॉज ले लेके बोलो, 1-2 वर्ड के बीच में टेक अ पॉज एंड मेक ऐसा कुछ बोलो कि जैसे कि बाकी सब तुम्हारे से बात करने के लिए, तुम्हारे चीजों पे बात करने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। समझ रहे हो? जैसे कि कुछ भी यूनिक पॉइंट्स तुम डिस्कशन में ला सकते हो। प्लस अगर तुम जैसे मैक्स टू मैक्स 2 से 3 बार बोलना है, 3 भी एकदम मैक्सिमम है, 2 बार इज सफिशिएंट बीच में बोलने का। एंड ट्राई कि जब तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारे ईच और एवरी वर्ड एकदम क्लियरली तुम बोलो और सामने वाले को समझ आए, ठीक है? इसलिए इस पे वर्क करना, पॉज कैसे लेना है बोलते वक्त, और लाइक कितने टाइम बोलना है। ऐसा भी नहीं कि फ्लो में बोले ही जा रहे हो, तुम खुद के पास भी एक दिमाग में टाइमर रखना।
या एक्चुअली 1 to 1.5 मिनट्स इज इनफ। लाइक तुम अगर उससे ज्यादा बोलते हो तो फिर इंटरव्यूअर ही बोर हो जाता है कि हाँ भाई बंद कर दे, अब तेरा सुन लिया बहुत ज्यादा। उसके बाद तुम्हें दूसरी बार बोलने का मौका दिया जाता है, तो तुम 2 या 3 बार बोल सकते हो, बट ट्राई टू लाइक स्पीक लाइक 1 मिनट में हो जाए तुम्हारा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर तुम बोल रहे हो तुम वही चीजें रिपीट कर रहे होते हो कहीं ना कहीं चीजें। तो आई विल सजेस्ट कि 1 मिनट 20 सेकंड ऐसा कुछ रखो। That's it. समझो इस चीज को कि वो एक डिस्कशन है, ना कि तुम्हें किसी को सही प्रूफ करना है, अपने आप को सही प्रूफ करना है, बाकी को गलत। तुम डिस्कस कर रहे हो और जब कंक्लूड करो ना एट द एंड, तो ये याद रखना कि अगर पूरी पैनल एक चीज पे सहमत हो गई हो तब तो ठीक है, तो बोलना कंक्लूड ऑन इन द फेवर और अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक भी बंदा हो ना जो कि अपना लाइक अपना मोटिव बोल नहीं रहा हो कि मैं इस तरफ हूँ, या फिर एक भी बंदा डिसएग्री कर रहा हो ना, तब भी तुम कंक्लूड जो भी करेगा ये बोलना कि वी डिडंट अराइव एट अ कंक्लूजन बट वी डिस्कस दिस पैरामीटर्स। वो ऐसा करना, ठीक है। एक भी बंदे के लिए पूरा पैनल का ही जो आउटकम होता है वो अलग होता है, समझे? Seniors, thank you so much for your insights. So, next question that I would like to ask you is that projects that definitely would matter a lot within internships. Even though, like some of the seniors, like Niladri Ghoshal sir, they personally told me that they did not make a project for their Kane internship. But on the other hand, Thakur Satvik sir, Anmol sir, and Ayush sir as well, they did tasks and projects as well. So, how did you prepare that, and did you take any help from your seniors as well? तो देखो यार, प्रोजेक्ट्स का हाँ, केन नहीं देखती है प्रोजेक्ट, बिकॉज केन कंप्लीटली आती है कोर सेक्टर में। बट वेयर एज जो अलग कंपनीज, स्पेशली जो प्राइवेट कंपनीज है, वो प्रोजेक्ट्स इसीलिए नहीं देखती कि तुमको लेके उस चीज में काम कराना है। दे वांट कि हम जिस कैंडिडेट को हायर करें उससे अपने कोर में इंटरेस्ट है कि नहीं। एक्चुअली उनको वो चीज देखनी होती है। तो इसीलिए लाइक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, वो एक इंटरव्यू व्यूअर के लिए भी बहुत अच्छा जरिया होता है एक कैंडिडेट को लाइक इवेल्युएट करने का। अगर एक कैंडिडेट ने अपने प्रोजेक्ट को खुद से बनाया, अच्छे से बनाया है ना, तो वो एक चीज समझा सकता है उस प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। और जब तुम प्रोजेक्ट बनाते हो कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ोगे ना, तुम्हारे उस टॉपिक में तुम इतने ज्यादा अच्छे हो जाओगे कि तुम वो चीज किसी और को एकदम सही से पढ़ा सकते हो, समझे? तो इसीलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है किसी के रेज्यूमे में, वो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली दूसरों से डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर को उसके साथ डिस्कशन करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता है और उस पे वो कंप्लीटली इवेल्युएट कर रहा होता है। क्योंकि अगर तुमने गलती से छाप के प्रोजेक्ट डाल दिया और इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि भाई ये कैसे बना बता, और तुम नहीं बता पाई, यू आर गॉन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए कभी भी प्रोजेक्ट बनाना, खुद से बनाना, और अगर किसी से हेल्प ले भी रहे हो तो उनसे पूरा समझना कि कैसे हेल्प लेना है, क्या करना है। मेरे सीनियर थे ज्ञानेंद्र दास, जिनसे मैंने हेल्प ली थी बनाते वक्त प्रोजेक्ट, और लाइक अच्छे से समझना, क्योंकि ईच चीज जो तुम उसमें लिख रहे हो ना, ईच लाइन या फिर ईच लाइन ऑफ कोड जो भी तुम लिख रहे हो, जो भी फंक्शन लगा रहे हो, उसकी पूरी समझ तुम्हें होनी चाहिए। जैसे मशीन लर्निंग में मैंने जो एल्गोरिदम्स यूज करे थे, तुमको क्वेश्चन पूछेंगे यही वाला एल्गोरिदम क्यों उठाया, अगर तुम उसका वेग आंसर दोगे तो यू आर गॉन देयर ओनली, ठीक है। तो हाँ, लाइक प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स होंगे तभी लेना है। सो बस वही तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि कंपनीज को बस देखना रहता है, जो कोर में कंपनीज आती, छोटा ओजी में तो एकदम अलग ही हो गया, उनका काम ही वही है। वेरएज इन सब में देखना होता है उनको कि तुम कितना इंटरेस्टेड हो अपने खुद के कोर के लिए। हाँ, तो मतलब ऐसा ही होता है। जैसे केन यूजुअली नहीं पूछते, जैसे केन में हम लोग ने अप्लाई किया था, तो जब हम लोग सीवीज बना रहे थे तो सीनियर से ही बोले थे कि प्रोजेक्ट्स मत डालो, मतलब नहीं है तो मत डाला करो, बाकी लोगों से ही बोल रहे थे। बट आई वुड सजेस्ट कि लाइक एग्जॉन में जब मेरा फाइनल राउंड हुआ, हम लोगों का इंटरव्यू था, तो हम लोगों से, ठाकुर भी शायद एग्री करेंगे, पहला क्वेश्चन ही हम लोगों से पूछा था कि तुम्हारे इंट्रो के बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट्स क्या है। सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था। अब अगर जिनके पास नहीं है तो वो फिर मतलब एक तरह से बाहर ही हो गए। जैसे हम लोगों से आधा घंटे इंटरव्यू चला था, तो उनका 10 मिनट 15 मिनट में ही खत्म कर दिया, क्योंकि उनके पास डिस्कस करने के लिए टॉपिक नहीं है। दे वुडंट डिस्कस अबाउट योर क्लब कि तुम भाई वो क्या बोलते हैं, LCI में हो या जिसमें हो, किसमें हो, ADC में, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक टाइम पे मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए कुछ टॉपिक्स नहीं है उनके पास, तो वो उतना ज्यादा नहीं करते हैं।
अब जैसे कि मैंने अपने रिज्यूमे पे 3 प्रोजेक्ट्स डाले थे जितना मेरे को याद है, हाँ उस वाले रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट्स थे और तीनों मेरे को जैसे लिथोलॉजी प्रेडिक्टर, बॉटम होल प्रेशर प्रेडिक्शन, टेम्परेचर ऐसे कुछ थे। तो उस बेसिक्स पे मेरा इंटरव्यू जो चला था वो मेरा कंप्लीटली जो फाइनल राउंड सेकंड इंटरव्यू राउंड था वो उस पे बेसिस पे ही चला था कि तुमने भाई कौन सी मॉडल्स यूज किए, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज की। फिर उसका मेरे को अभी याद है मेरा सबसे टफेस्ट प्रोजेक्ट था वो मैंने बीच में डाला हुआ था, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि अगर कोई भी इंटरव्यूअर उठेगा तो वो या तो पहले प्रोजेक्ट से पूछेगा या तो लास्ट प्रोजेक्ट से पूछेगा, बट वो बंदा इतना होशियार है जो भी उसको बोलो उसने बीच वाला प्रोजेक्ट ही उठाया। पहला क्वेश्चन मेरा उसी प्रोजेक्ट से किया कि भाई तू ये बता तूने ये कैसे करा, और उसमें कुछ मेरा एक्यूरेसी स्कोर प्रिसीजन शायद 96% था। तो वो ये मेरे को सजेस्ट किया कि अगर तुम दूसरा मॉडल लगा के भी ट्राई करना चाहिए था तुम्हें। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था हाँ भाई कि अब तो काफी डीप डिस्कशन जा रहा है, थोड़ा टॉपिक यहाँ वहाँ मोड़ते हैं। तो फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि हाँ सर इसमें मेरा 99% एक्यूरेसी आ रही है। तो ऐसे तुम थोड़ा सा बातचीत करने में तुमको होना चाहिए उस चीज को। और बाकी प्रोजेक्ट्स में तुम हाँ मतलब अगर तुम्हारे पास अभी कई लोग होंगे जो सीनियर से प्रोजेक्ट्स मांग रहे हैं ये वो, तो अभी भी तुम क्या कर सकते हो, तुम बेसिक्स पाइथन के क्लियर कर सकते हो अपने, और उसके बेसिस पे तुम जैसे 4th सेम पे तुम्हारे विस्कोसिटी कोरिलेशंस, वेस्क्यू बेस, बेग रॉबिन्सन में कुछ करवाया था शायद नैयर सर ने, तुम्हारे कुछ जूनियर्स बोले थे मेरे को। तो वैसे पे प्रेशर कैलकुलेशन, रिजर्वायर प्रेशर कैलकुलेशन, ऐसी वॉगल्स रिलेशनशिप, ऐसी काफी चीजें होती हैं जिसपे तुम इजीली पाइथन के बेसिक सीख के ही एक कुछ तो बना सकते हो अपने पास। अगर पाइथन नहीं सीखना तो एक्सेल पे ही कुछ वर्क कर लो अपना। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीजें रखो। अब तुम्हारे पास वो भी नहीं है तो डीएफसी ड्रिलिंग में तुम्हारे पास एक प्रोजेक्ट्स बनवाए होंगे तुम्हारे लैब प्रोजेक्ट में, उसकी ड्राइव लिंक डाल दो, उसके बारे में डाल दो। एंड वो भी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम ओएनजीसी में जो तुमने रिपोर्ट बनाई थी एक कुछ बनवाया होगा ना तुमसे फाइनलाइज करते टाइम पे, तो उसका एक्सपीरियंस डाल दो, वो रिपोर्ट की ड्राइव लिंक डाल दो, एक्सेल की लिंक डाल दो। तो ऐसे ब्लैंक सीवीज लाइक वो काम नहीं करती है, वो तुम पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे तो उसका मतलब नहीं है कुछ। तो आई विल सजेस्ट कि तुम लोग प्रोजेक्ट्स बनाओ, अभी भी टाइम है, पेट्रोलियम की कंपनी बाद में आती है सारी। तो आई विल सजेस्ट कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, उठाओ, देखो, गिटहब्स देखो। और प्रोजेक्ट डालने का कुछ तरीका होता है, जैसे तुम अपने सीवी में डाल रहे हो तो प्रोजेक्ट्स में जैसे नॉन कोर वाले डालते हैं कि भाई तुमने क्या चाहते हो, तुम्हारा एम क्या है, तुम कर क्या रहे हो, तुम लाइब्रेरी कौन सी यूज कर रहे हो, कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो, एल्गोरिदम कौन सी यूज कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा स्कोर कितना आ रहा है, तुम कितना सक्सेसफुल हो उस स्कोर में, और उसके बाद तुम गिटहब की लिंक डाल दो या फिर जहाँ भी तुम्हारा वो कोड है उसकी लिंक डाल दो, ताकि वो इंटरव्यू कम से कम देख पाए। तुम्हारा पता चला तुमने केवल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दी, तुमने लिंक डाली ही नहीं है, तुमने जो भी गिटहब की लिंक है, जो भी कोड है वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उसको कैसे पता चलेगा तुमने सच में बनाया है नहीं बनाया, और कैसा किस हिसाब से बनाया है तुमने। आई विल सजेस्ट कि वो भी कर लो। एंड प्रोजेक्ट्स मैटर इसलिए भी करते हैं, लाइक मेरी अभी इंटर्न में ही एक क्लाइंट्स थे मेरे कनाडा के, अपने सीनियर है आदित्य अग्रवाल सर, वो अभी कैलगरी में है। वो कैनिकल करके एक कंपनी है, उसमें मेरे क्लाइंट्स थे, तो मेरी मीटिंग थी उनके साथ। तो पहले तो हम लोगों की ऑफिशियल मीट चल रही काफी देर, फिर अनऑफिशियल हो गया कि आईएसएम के हैं वो भी, तो वो जान गए कि हम भी अनऑफिशियल मतलब आईएसएम से ही है। तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो फिर वो बताने लगे कि वो मतलब पहले यूएसए गए, शेल में काम किया, वो वहाँ शिफ्ट हो गए। वही चीज बात हो रही थी कि प्रोजेक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट एंड ऑल। तो वर्क करो, अभी नहीं है तो सीनियर्स हैं तुम्हारे काफी, किसी से पूछ सकते हो आराम से, काफी सोर्सेज हैं कि तुम बन जाएगा, तुम सीखो। एंड प्रोजेक्ट सिर्फ डाल रहे हो तुम, तो मेक श्योर कि उस चीज के बारे में A to Z तुम्हें आता हो। दैट्स इट। आई विल सजेस्ट कि प्रोजेक्ट्स डाल दो, या अभी आयुष ने बोला कि ब्लैंक सीवीज वाली पॉइंट, एंड इट्स क्वाइट ट्रू। मेरा भी इंटरव्यू जो एक्सॉन मोबिल में हुआ था, इट वाज मोर ऑफ लाइक स्टार्ट, उनको एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए, तो इससे अच्छा कि वो रैंडम स्टार्ट करें, इससे बेटर है कि मेरे ही प्रोजेक्ट से वो स्टार्ट करें, मतलब जो तुमने सीवी में लिखा है, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल इन दैट टॉपिक एज यू हैव एडेड इट इन योर सीवी। सो इट ऑल्सो शोज अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द थिंग दैट मुझे शुरू से रिजर्वर इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो रिजर्वर इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो उसके तरफ यू कैन शो दैट इंक्लिनेशन कि हाँ इन लाइक दिस टॉपिक्स, इसीलिए मैंने इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाया है। 2 ही 3 पॉइंट्स बोलूंगा इसके ऊपर कि लाइक तुम्हारी इंक्लिनेशन पता चलेगी कि तुम लाइक टुवर्ड्स विच फील्ड यू आर मोर इंक्लाइंड, एंड ऑल्सो इट विल गिव एन इम्पैक्ट कि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉट। यू क्रिएट लाइक तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट through different means, be it an Excel sheet or be it Python codes or be it whatsoever. ऐसा ही नहीं है कि तुमको बहुत मुश्किल से ही कुछ प्रोजेक्ट डालना है। अभी भी इसने बोला आयुष ने कि कोई कुछ ना कुछ डाल दो, तो कुछ नहीं डालने से कुछ दे देना ही बेटर है।
ऐसा नहीं है कि एकदम मशीन लर्निंग मॉडल्स ही डाल रहे हैं कि मैं तो इसके नीचे काम नहीं करता हूँ या ऐसा कुछ ही डाल रहा। एक कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखो जिसपे तुम बता सकते हो कि समर मैंने अपना इस चीज पे निकाला, मुझे इस टॉपिक्स के बारे में क्लैरिटी है। Like for example, if you add relative permeability sort कि तुम relative permeability का visualization पे तुम काम किए, so they have a point to start from rel pumps that they'll start asking you what are Conet saturations, irreducible saturations, कैसे move हो रहा है, imbibition drainage क्या होता है. They can begin with that topic or you can go on with your interview process through that. तुम्हें कोई चीज comfortable लग रही है, like मुझे logging पसंद है, I'm more inclined towards well logging and formation evaluation, तो मैंने उसका डाल दिया था. So they started with logging. And yeah, it goes on like that. So it's beneficial to add projects. No, कोई negative point नहीं होगा, तो it's quite safe, add कर सकते. तो हाँ Okay, ऑब्वियसली तो तुम जिसमें प्रोजेक्ट, हाँ भाई तरंग बोल ले, सॉरी। अच्छा, तो देखो प्रोजेक्ट का ऐसा है कि वी हैव नो स्पेसिफिक आंसर कि प्रोजेक्ट मैटर करेंगे या नहीं करेंगे, बिकॉज जब तुम्हारा फाइनल शॉर्टलिस्टिंग आती है तो उसमें मे बी उन लोगों ने रेज्यूमे प्लस ऑनलाइन टेस्ट दोनों को देखा हो एंड देन शॉर्टलिस्टिंग निकाली हो सकता है कि सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे निकाली हो। तो रेज्यूमे में जो प्रोजेक्ट इज अ प्लस पॉइंट। मैंने जो रेज्यूमे में प्रोजेक्ट डाला था वो था पावर बीआई का। पावर बीआई तुम सब जानते होंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। तो तुम क्या कर सकते हो कि कैगल से कोई भी डेटा सेट उठा सकते हो। सो मैंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड ये डेटा सेट उठाया था और वो जो डेटा सेट था उसको मैंने पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया था, जिससे वाटर कट, गैस ऑयल रेशियो और बहुत सारे वेल्स थे। तो ईयर बाय ईयर वो वेल ने कितना ऑयल प्रोड्यूस किया, कितना गैस प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोजेक्ट में ये सब था। तो प्रोजेक्ट एट द एंड हेल्प ही करता है, क्योंकि मेरा एक रिलायंस में तो प्रोजेक्ट का कुछ यूज हुआ नहीं था, बट एक इंटरव्यू हुआ था वुड मैकेंजी का, मैंने दिया था। तो आई सॉ डेट वो लोग पूरा रेज्यूमे से ही इंटरव्यू लिए थे एंड उसमें से भी जो मेरा प्रोजेक्ट था उस पर कम से कम उन लोगों ने 25 मिनट, मतलब 25 मिनट तक प्रोजेक्ट से ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी तुमने कैसे कैसे बनाया है, डेटा सेट कहाँ से उठाया है, कैलकुलेशंस तुमने कैसे की, जो फाइनल आउटकम आया है वो होता क्या एक्चुअली, उसके जितने भी कर्व्स है, जैसे उसमें अगर जीओआर, मैंने ये शो किया था कि जीओआर निकल रहा है, तो उन लोगों ने मुझसे सब पूछ लिया कि जीओआर वर्सेस प्रेशर का कर्व कैसे होता है। उसमें उन लोगों ने ड्राई मैकेनिज्म ऐड कर दी। तो जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका डीप नॉलेज होना चाहिए तुम्हें। और जैसे मुझे एक कंपनी में प्रोजेक्ट काम आ गया, तो वैसे तुम्हें भी काम आ ही सकता है किसी भी कंपनी में। सो प्रोजेक्ट एक बना लेना, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड और एमएल से रिलेटेड। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी है, जैसे एक है पेट्रोलियम फ्रॉम स्क्रैच करके, उसमें एमएल बहुत अच्छे से सिखाई है उनने, तो तुम उससे देख सकते हो। तो लाइक ऑब्वियसली जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट बनाना तो तुम उसी रिलेटेड ही बनाना जो तुम्हें पसंद हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बनाने में भी मजा आएगा, प्लस तुम उसको जब बताओगे भी तुम्हारे पास बोलने के लिए उसके रिलेटेड चीजें होगी। जैसे मेरा भी फेवरेट, मेरे जो सबसे सही मुझे लगता था वो लॉगिंग ही लगता था, तो मेरे सारे ही प्रोजेक्ट लॉग्स पे बेस्ड है। जितने भी तुम मेरा गिटहब खोलो तुमको दिख जाएगा, सारी प्रोजेक्ट्स मेरे लॉग पे, अभी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी लॉग पे ही है। तो उधर मतलब तो बेसिकली उस पे ही करना जिस पे तुम्हारा इंटरेस्ट हो, और ऐसा सही में छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफ से बात कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है अपने डिपार्टमेंट के प्रॉफ, वो भी बता देंगे तुम क्या क्या कर सकते हो। Thank you, seniors. Our next question is, how did you prepare for both the technical and non-technical rounds? What resources did you find most helpful for your preparation? So the thing was, like, do you mean like technical, non-technical? Do you mean HR round? Are you referring to the non-technical round as HR round? So I can have a heads up right there. Yes, sir. Like Okay. interview rounds. Yeah, sure. So the thing was, for ExxonMobil, we had an integrated round for this, the PI round. Isme they had time slots divided that they'll ask this much from the core engineering and some portion from the HR round. HR questions are basically behavioral questions that comes from your PORs or the POCs that you have like allotted in your resume कि तुम कौन से क्लब में क्या काम कर रहे हो, if you are there in a student society, so what's your responsibility out there, if you have organized any events, so what sort of stuff have you done. So it's related to that. But coming to the portion of core petroleum engineering, let's get back to what Ayush and Anmol were referring to in the initial questions कि जब कोई कंपनी आई है
तो देखो वो किस प्रोफाइल के लिए आई है, राइट? वो ऑन फील्ड जॉब है या वो डेस्क जॉब है, रिजर्वॉयर के लिए है, प्रोडक्शन के लिए है, सर्वेलेंस के लिए है, किस तरीके का जॉब है. सो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. Focus more on if like for a company like ExxonMobil, मेरे लिए जो questions थे they were mostly revolving around reservoir engineering, production engineering, operations, formation evaluation, and some sort of well site geology and geophysics. That's what that was it. And yeah, they ask you questions from your previous trainings and stuff. If you are thorough with the subject, अगर तुम्हें basics की clarity है, then you would be easily able to get through it. हाँ, बट द थिंग इज कि अगर मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम अपना थॉट प्रोसेस उन्हें बता दो, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मुझे नहीं आ रहा है, या गिविंग देम ब्लैंक स्टेयर्स वुड बी द वर्स्ट ऑप्शन. बट अपना थॉट प्रोसेस बताना, एंड स्लोली दे माइट इवन गाइड यू टू गेट टू द आंसर, बिकॉज व्हाट दे वांट टू चेक इज योर थॉट प्रोसेस. वो ज्यादा फोकस उसी पे करेंगे कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है. मेरे केस में तो पर्सनली यही था, बाकी मुझे और ये लोग भी बताएंगे तो तुम्हें और पता चलेगा. बट मेरे हर एक क्वेश्चन में इट वाज लाइक दे वर ट्राइंग टू असेस कि किस तरीके से सोच रहा है, एंड बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, उस टाइप से. So yeah, you can go on with that. Or HR questions are basically on from your CV itself, so it works. Like हाँ, बेकर में HR राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गया था सबके लिए, बिकॉज बेकर पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने, लाइक डेडिकेटेड 4 लोग बैठे थे, और तुम जैसे ही अपना इंट्रो शुरू करोगे, तुम्हारे इंट्रो से तुम्हारा क्वेश्चन पूछना वो लोग चालू कर देंगे कि ये क्यों किया. जैसे कि मैंने ऑब्वियसली मेंशन किया था कि मैं एक ट्राई एथलीट हूँ, तो फिर उन्होंने सबके टाइमिंग्स वगैरह पूछे थे, सर्टिफिकेट्स के लिंक थे मेरे सीवी, उन्होंने वो सब देखा था. तो एचआर राउंड का बेसिक पर्पस ही यही होता है, बी योरसेल्फ. जो तुम्हारी पर्सनालिटी है वही शो करो, क्योंकि तुम उधर फेक करने जाओगे तो उधर फंस जाओगे, जो कंपनी सही में एचआर राउंड लेती है. क्योंकि बेकर के लिए पेट्रो से एचआर में 8 लोग थे, 8 से 9 लोग थे, 8 से 10 लोग थे शायद एचआर राउंड में. उसके बाद सबको ही शॉर्ट लिस्ट हटा दिया गया था. एक चीज याद रखना, जब भी कोई कॉर्पोरेट कंपनी आ रही है और पूछ रही है कि तुम गेट देना चाहते हो कि नहीं, तो तुम आंसर नो बोलना. कोई भी हाँ बोल मत देना कि हाँ गेट देना चाहता हूँ फिर ओएनजीसी जाना चाहता हूँ, कोई भी नहीं, सबको ही नो बोलना अगर कोई पूछे. ऐसे बहुत सारे ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि तुम्हें पूछा जाएगा तुम फील्ड पे काम करना चाहते हो कि ऑफिस वर्क लेना चाहोगे, तब तुम्हें फील्ड बोलना है, ठीक है, क्योंकि तुम पेट्रोलियम के हो भाई, तुम अभी वो नहीं हो कि सीधा ही रेजर्वर प्रोफाइल मिल जाएगा सोच ले रहे हो. वो होगा इवेंचुअली, एट द एंड वही आना है सबको, बट वो तुम्हारी पर्सनालिटी देखेंगे, वो तुम्हारी चाह देखेंगे उसमें आने की. तुम पहली बात में बोल दोगे कि नहीं मैं तो ऑफिस जॉब लूंगा, वो नहीं होता. तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिक क्वेश्चन में जाके नहीं फंस जाना, और सही सही बोलना अपने बारे में. हाँ, सो जैसा अनमोल बोल रहा है वैसा मेरे साथ हुआ था. जब मेरा पहला इंटरव्यू राउंड था तो उसमें मुझे टास्क मिला हुआ था कि तुम्हें, मेरा टास्क बहुत अच्छा था, मैं बता देता हूँ. मेरा टास्क था, मेरे को रियल टाइम डेटा दिया हुआ था. यूएसए का एक वेल था, गैस वेल था, उसका रियल टाइम डेटा, जैसे जो आज का डेटा था, जो गैस फ्लो रेट्स का जो भी डेटा चाहिए होते हैं हम लोगों को, वो सारा दिया हुआ था. फ्लो कांस्टेंट वगैरह सारे दिए हुए थे, और उससे मेरे को आईपीआर और टीपीआर जनरेट करना था, और उसका ऑपरेटिंग पॉइंट प्रेडिक्ट करना था मुझे कि कहाँ आज वो फ्लो कर रहा है, किस पोजीशन में फ्लो कर रहा है वो. तो एक्चुअली उसमें हम लोगों के यहाँ पे ज़्यादा उतना होता नहीं है, तो उतना ज़्यादा किसी को पता नहीं था. तो मैंने काफ़ी यहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ा, रिसर्च पेपर्स पढ़े, कोड्स देखे, तो उसमें हम लोग वर्क कर ही रहे थे. तो उसमें टाइम लग रहा था थोड़ा सा, एंड एचआर भी जानता था कि टाइम लगेगा, वो टफ प्रोजेक्ट था काफ़ी. तो उसने टाइम इंक्रीज किया हुआ था, मतलब उसने टाइम एक्सटेंड कर दिया था. मैंने बोला था तो उन्होंने टाइम एक्सटेंड कर दिया था 1 वीक का. और क्योंकि हम लोगों का वहाँ फेस्ट वेस्ट भी चल रहे थे तो काफ़ी उसमें भी टाइम जा रहा था. उसके बाद हुआ क्या कि जब मेरा फर्स्ट राउंड हुआ तो उन्होंने यही पूछा मुझसे कि ओएन मतलब तुम्हारे क्या शेड्यूल है आगे का, तो उसके हिसाब से हम टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो मैंने बोला मेरा 4 को ओएनजीसी का पेपर बोल रहा हूँ, गेट का पेपर है. तो वो मुझसे यही बोले कि मतलब वी आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक तुम अगर ऐसा करोगे, मतलब अगर हम तुम्हें पीपीओ देते हैं एंड ओएनजीसी ऑफर करती है, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं मना बोलना है. तो फिर मैंने यही बोला था कि हाँ मेरे फ्रेंड्स दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया ऐसे ही, अब मेरा देखते हैं कैसा प्रिपरेशन की नहीं है ये वो. तो हाँ, थोड़ा सा लॉजिकली और थोड़ा दिमाग से खेलना होता है कि हाँ वो तुम्हें अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो वो दे डोंट वांट कि लाइक वो इंटर्न दे रहे हैं तुम्हें, फिर वो पीपीओ ऑफर कर रहे हैं और फिर तुम कहीं जा रहे हो.
तो उनका लॉस है इसमें, क्योंकि वो इंटर्न अगर दूसरे को हायर करते और उनको पीवी देते तो वो रहते उनके साथ। तो हालांकि तुम्हें थोड़ा दिमाग से खेलना होता है, वो ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर मैं ऐसा बोल दूंगा तो तुम्हें क्या होगा। तो वो point of if I tell about like for preparation of the technical round, like so I begin by like thoroughly reviewing, as Thakur said, by the job description, so to understand exactly what the company is expecting from me. So in my case, the main focus was on the job description was on the nodal analysis, like interpretation of the IPR curves, how they are varying on different factors, and prediction of the gas flow rates, bottom hole pressure using the ML models, and mainly on the development strategy for the well optimization. तुम wells को optimize कैसे कर सकते हो, मतलब minimum cash flow कैसे कर सकते हो। तो मैंने क्या किया कि आई कवर दोज टॉपिक्स, लाइक मेरे नोट्स थे उससे पढ़े मैंने। फिर उसके बाद पीपीटीज होती हैं अपने पास, प्रोफेसर की पीपीटीज एक बार सारा कवर कर लेना जितना है उसमें, एक बार ऊपर ऊपर से देख लिया जाता है कि हाँ भाई इतना है, कुछ भी पूछ लेंगे। उसके बाद बुक्स हैरियर वॉट हो गई प्रोडक्शन के लिए, ये जो मेन बुक्स होती हैं वो पढ़ लो। एंड उसके बाद एक और बुक होती है, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा, गैस वेल्स के लिए बुक्स थी वो, मतलब काफी अलग हटके बुक थी, अपने जो पढ़ाया जाता है उससे थोड़ा हटके थी। उसमें गैस कैलेंडर स्मिथ मॉडल था, तो उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता शायद, जितना मेरे को ध्यान है, कैलेंडर स्मिथ मॉडल, तो वो भी पढ़ा था। 2-3 चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ी थी। एंड फॉर द नॉन टेक्निकल राउंड्स, लाइक आई प्रिपेयर्ड फॉर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, लाइक अबाउट माय बैकग्राउंड, पहले मैंने कैसा क्या किया उसके बेसिस पे, एंड वेयर आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, माई फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल. So you guys can find these resources online, and these there are provided well structured answers to these common interview questions. So HR के लिए तुम देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे। सो हम लोग का जो टेस्ट था उसमें जैसे मैंने बोला जो 4 सेक्शन थे। सो पेट्रोलियम तो जो था वो कुछ ज्यादा ही हार्ड था उसमें। सो आई डोंट थिंक सो किसी भी कैंडिडेट ने पूरा ही पेट्रो पे फोकस किया होगा 100%, बिकॉज 50% पेट्रो वाज वेरी टफ। सो द डिसाइडिंग सेक्शंस वर रेस्ट ऑफ द इंग्लिश और एप्टीट्यूड के सेक्शंस। सो हो सकता है तुम्हारे टाइम पे पेट्रो इजी आ जाए, हमारे टाइम पे जो बचे हुए सेक्शन थे वो ज्यादा इजी थे। सो ट्राई करना कि एक दिन ही, मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन एप्टीट्यूड और इंग्लिश के जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ ट्रेन प्रॉब्लम्स होती है, देन एज वाली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे थे। सो इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, हमने तो वहीं से किए थे एक दिन पहले फील लेने के लिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होंगे, बट ट्राई करना कि सारे सेक्शन को तुम ना इक्वली टाइम दो, और सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट थे। सो यही है, मैं वेबसाइट जो जहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिंक डाल दूंगा, उस पर काफी अच्छे क्वेश्चन है। Okay, so thank you, sir, for all of your suggestions and recommendation for the resources. So we hope that we have covered all the probable doubts. Now I would like to request everyone, if anyone else has any more questions they wanted to ask. Good evening, seniors. Seniors, is there anything in the GD session like अगर मैंने शुरू में एक टॉपिक का अगेंस्ट में बोला तो मेरे को थ्रू आउट द जीडी सेशन मेरे को अगेंस्ट में बोलना है, या तो मैंने फॉर में बोला तो थ्रू आउट द सेशन फॉर में ही बोलना है? आई विल टेक दिस। अच्छा, लाइक देखो, एक चीज को थोड़ा क्लियर रखो, टू एंड फॉर, लाइक फॉर एंड अगेंस्ट डिबेट में होता है, डिस्कशन में नहीं। यू हैव टू शेयर योर वी पॉइंट, जो हमेशा अगेंस्ट नहीं जाएगा। लाइक अगर मान लो कि द टॉपिक इज लाइक जो मेरा टॉपिक था वही पकड़ लेते हैं कि डेटा, लाइक इज देयर डेटा प्राइवेसी और डजंट इट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, स्टफ लाइक दिस। तो तुम ये बोल सकती हो कि हाँ नहीं करता है या एग्जिस्ट, या कोई एक बार में बोल सकता है कि ये करता है एग्जिस्ट, बट डोंट ट्राई टू कम टू कंक्लूजन टुवर्ड्स इट। लाइक इट्स नॉट अ डिबेट कि तुमको अपना पॉइंट प्रूव करना है। ट्राई टू स्टे एट अ पॉइंट जहाँ पे तुम दूसरों के सजेशंस को एक्सेप्ट करने के पोजीशन पे हो और अपने दिए हुए सजेशंस को भी डिफेंड करने के पोजीशन पे हो, बोथ द केसेस। ना ज़्यादा पीछे चले जाओ, ना ज़्यादा फ्रंट फुट पे आ जाओ। दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट, सो दैट इट विल बी फ्लेक्सिबल फॉर यू। कि अगर मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दिए हुए सजेशंस गलत हैं, यू कुड चेंज इट एट द राइट मोमेंट, राइट? अगर गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दोगी शुरू से कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है, प्राइवेसी है ही नहीं, या तो बोलोगे नहीं नहीं बहुत ज़्यादा ही प्राइवेसी है, हो ही नहीं सकता ब्रीच, तो कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। सो दैट्स द थिंग। कुछ एक मॉडरेट ग्राउंड पे स्टार्ट करने की कोशिश करो,
एंड लाइक जस्ट जो तुम्हारे सजेशंस आ रहे हैं, जो तुम्हारे व्यू पॉइंट है, उसको सराउंड करो अपने आइडियाज को, सही तरीके से कल्मिनेट करो. दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट. I'll tell others to like clarify this. हाँ, जैसे कि लाइक एक जीडी में ना कभी भी तुम ये मत बोलना कि यही होगा, ऐसे हमेशा डू इट लाइक दिस कि आई थिंक ये हो सकता है, आई मे बी दिस इज पॉसिबल. ठीक है, हमेशा अपने आप लाइक तुम्हें लोगों को पता चल रहा होगा तुम किस डायरेक्शन से बोल रही हो, लेकिन हमेशा अपने आप को डाउट मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट देना, और कभी तुम अपना साइड चेंज भी कर रही हो तो फिर उस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना. इफ दिस इज द केस देन आई थिंक दिस माइट बी द सोल्यूशन, वैसा करके. ठीक है, नॉर्मली तुम जैसे दोस्तों के साथ बात करते हो वैसे ही बात करना है, बस चिल्ला विला के एक दूसरे को थप्पड़ वप्पड़ मार के नहीं. ठीक है, जस्ट बात करना है. डिस्कशन का मतलब है बात करो, डिस्कस करो. ठीक है. या लाइक कंप्लीटली एग्री विद ठाकुर कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो कोई भी पॉइंट तो तुम एक मॉडरेट स्टेट से चालू करो, कि हाँ उसको डिफाइन करने से चालू करो, ना कि उसके फायदे मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस ना उसके ज्यादा फायदे के ना हो, ना प्लस पॉइंट ना माइनस पॉइंट. उसको डिफाइन से स्टार्ट करो कि वो चीज क्या है, उसके बारे में क्या क्या अभी तुम जानते हो. लेटर स्टेजेस में जब तुम सेकंड दूसरी बार बोलोगे, तीसरी बार बोलोगे, तब तुम उसमें थोड़ा डीप जा सकते हो. शुरुआत कर रहे हो तो, और आई विल सजेस्ट कि थोड़ा पॉजिटिव रहो. लाइक नेगेटिविटी वो लोग नहीं चाहते हैं कंपनी में भी और चीजों में भी. थोड़ा सा पॉजिटिव रहो चीजों को लेके. वही चीज जैसे कि वो प्राइवेसी इज अ मिथ इन टुडेज वर्ल्ड में, अगर तुम कंप्लीटली डिसएग्री करते हो कि नहीं नहीं प्राइवेसी तो बहुत ज्यादा है, तो सब लोग जानते हैं कि नहीं है उतना, तो उसमें तुम कंप्लीटली डिसएग्री नहीं कर सकते हो. तो वही चीज है कि स्टार्ट करो तो थोड़ा मॉडरेटरी चालू करो, बाकी तुम डीप जाना है तो बाकी कर सकते हो, और इतना स्ट्रांगली डिसएग्री एग्री मत करो. वो लोग ऐसे टॉपिक देंगे ही नहीं जिसमें सबको पता होगी तुम स्ट्रांग एग्री या डिसएग्री कर सको. मेन पॉइंट वो होता है. तो ऐसे टॉपिक देंगे जिसमें थोड़ा सा झगड़ा हो सके. वो लोग यही चाहते हैं कि वो करवाना ही चाहते हैं कि उनको एलिमिनेट करना है. तो ऐसे टॉपिक ऐसी चीजें करना ही मत कि तुम कंप्लीटली एग्री या डिसएग्री करो. दैट्स फ्रॉम माय साइड. हाँ, और जीडी में ना एक चीज होगी, हमारे टाइम पे तो ये हुआ था कि मैं जो पॉइंट लिख के रखता था तो जो स्टार्ट करता था वो सारे पॉइंट बोल देता था. सो देयर इज नो पॉइंट कि तुम उसी पॉइंट को वापस रिपीट कर दो. तो हो सकता है बीच में ना तुम्हें अपने पॉइंट्स चेंज भी करना पड़े स्पॉन्टेनियसली. सो पहले से ये मन बना के रखना कि मैं तो अगेंस्ट में ही रहूंगा या तो मैं सपोर्ट में ही रहूंगा, सो वहां पे काम नहीं करता है. तुम्हें बहुत बार स्पॉन्टेनियस भी अपने पॉइंट रखने होंगे क्योंकि लोग तुम्हारे पॉइंट बोल चुके होंगे पहले, अब तुम्हें वहां पे नए बनाने हैं जब जीडी चल रहा है वहीं पे बीच में. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, जो जिस सामने वाले ने जो चीज बोली तुम उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो उसके सपोर्ट में, या फिर तुम उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हो. सो यही है, पहले से लिख के रख सकते हो, बेटर है. वो तो बेटर होता ही है, बट स्पॉन्टेनियस चीजें आएगी जीडी के बीच में. यस सर. हाँ, एंड एग्जैक्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो तरंग ने बोली कि तुम जब दूसरे का जीडी चल रहा होता है तो अपन ऐसा कई लोग करते हैं कि जब दूसरे का बोलना होता है तब हम लोग अपने अगले पॉइंट लिखने लगते हैं, अगले पॉइंट रिवाइज करने लगते हैं क्या बोलना है. तो ऐसा नहीं होता, दूसरे का सुना जाता है उस टाइम पे. जो तुमने शुरुआत में लिख लिया उसी टॉपिक्स पे तुम चर्चा करोगे, बट जो बोल रहा है वो सुनो, क्योंकि तुम्हें उसके बाद से कंटिन्यू करना होता है. उसके बाद में तुमने सुना ही नहीं कि वो क्या बोला, तुम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. सो फोकस की लाइक तुम उसकी बात सुनो, देन तुम कंटिन्यू करके उसके आगे उसके चीज को डिफाइन करो. ऐसा होता है. तो लाइक ऐसा भी होगा कभी कभी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि तुम्हें बस अपने पॉइंट्स रखने, तुम पैनल के पास अपने क्वेश्चंस भी ला सकते हो कि अगर हम ये करते हैं तो फिर इसका इफेक्ट किस डायरेक्शन में जा सकता है. तो हमेशा यही मैटर नहीं करेगा कि तुम क्या स्टेटमेंट्स मेक कर रहे हो, तुम पैनल के पास अपने क्वेश्चंस भी लेके आ सकते हो. तो ये चीज भी याद रखना. ओके सर, थैंक यू सर. लाइक फॉर दैट तुम लोग अपने आप में ग्रुप्स बना लो, एक 4-5 लोगों के ग्रुप्स बना लो, उसमें से अभी से स्टार्ट कर सकते हो मतलब जाके, क्योंकि अगर कंपनीज जल्दी आई तो फिर प्रॉब्लम होती है. हमारे टाइम पे तो बाद में आई थी तो चिल था, बाकी अगर कंपनी जल्दी आ गई तो एक ग्रुप बना के करोगे तो सही है. Sir, personal question that I wanted to ask you is that, sir, like you had the experience to intern within the company, so you got to meet a lot of people, industry professionals as well. So there might be someone you look up to, or there might be a mentor that is especially like very good and well sorted within the field itself. So is there anything that has set the trend right now, that he did this particular thing which is now well in demand? Is there anything that you experienced? Yeah, so okay. Anmol, you wanna go? तुम बोलो. नहीं बोल. अच्छा, हाँ बोल. okay. Okay, getting along with that. So in a week my internship will be over, and I was in the surveillance team, reservoir engineering and surveillance team. और
ट्रूली स्पीकिंग, जितने भी लोग हैं इस कंपनी में, those who are my seniors and those who are guiding me, they are literally brilliant. ठीक है, and it humbles me कि यार इतना कोई अच्छा कैसे हो सकता है, कि इतना ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज एंड इतना अच्छा एनालिटिकल स्किल्स कैसे हो सकता है किसी का. So yeah, there are many people whom I look up to in this company. I have found them, and एक ही चीज़ है that I think is consistent. Like they are very consistent with their work. कि वो लोग repeatedly अपने skills को hone करने पे ध्यान देते हैं. They are about कि एक सॉफ्टवेयर यूज हुआ, ओके सो व्हाट आर द नुआंसेस, कि किस तरीके से हम लोग बेटर इसमें हो सकते हैं, किस तरीके से अपने रिजल्ट्स को और एफिशिएंट बना सकते हैं, एंड बीइंग ट्रू टू देयर वर्क. दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आई फाउंड हियर. कि ऐसा चीज़ है कि हर हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं, दूसरों को हेल्प भी करते हैं, बट दोज आर लाइक सब्जेक्टिव थिंग्स कि हेल्प करने लायक हैं तभी वो हेल्प कर रहे हैं. बट ऑन द पर्सनल बेसिस आई कैन लाइक क्वाइट रियली ऑब्जर्व कि वो लोग कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में, एंड दैट इज रियली अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. लाइक हाँ, तुम लोग भी जाओगे तो मिलोगे बहुत सारे लोगों से. मैं तो अभी फील्ड एंड टेक्नोलॉजी में हूँ, तो लाइक ऐसा नहीं है. लाइक बेकर जब आई हूँ तुमने देखा होगा, 2 मैकेनिकल से लिए, 1 इलेक्ट्रिकल से लिए, 1 पेट्रो से लिया. तो ये तुम्हारे लाइक दिमाग में आया होगा एक क्वेश्चन कि ये कैसा कंपनी सेम रोल के लिए 3 अलग अलग ब्रांचेस से उठाया. लेकिन ना, यहाँ पे आके लाइक सब कुछ सीखना पड़ेगा यार तुमको. लाइक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सारे टूल्स का सीखना पड़ेगा तुमको, मैकेनिकल रिगअप सीखना पड़ेगा तुमको, मैकेनिक्स में सब कुछ सीखना पड़ेगा. तुम्हारा जनरेटर कैसे चल रहा है, इंजन कैसे चल रहा है, इंजन खराब हो रहा है तो उसको कैसे रिपेयर करना है ऑन फील्ड, तुम्हारा कौन सा पार्ट खराब होगा उसको सर्विस कैसे करना है. तो ऑल इन ऑल तुम्हें चारों फील्ड्स का मास्टर होना पड़ेगा यहाँ पे आके. तो वैसे ऑब्वियसली ऐसे लोग मिले भी जो चारों फील्ड्स के मास्टर हैं, तो ऑब्वियसली उन जैसा बनना लाइक एक रहेगा सबका. मेरा भी है, मैं मुनीश करके एक बंदा है उससे मिला था, वो ऑलमोस्ट 7 years हो चुके उसको फील्ड में, एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज ही पोजेस इज लाइक अमेजिंग. बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बंदा, और इतना ज्यादा वार्म और डाउन टू अर्थ आज लोग मिलेंगे तुम्हें, लाइक हेल्प कर रहे हैं तुम्हें हर चीज में. कोई भी बेकार सी चीज लेके चले जाओ उनके पास, वो तुमको बताएंगे कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं होगा. दैट एक्चुअली मोटिवेट्स. और अगर देखा जाए तो फील्ड में ये बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब होता है. जैसे कि मुनीश लाइक ऑलमोस्ट 5 दिन से सोया नहीं था क्योंकि बहुत लंबा जॉब चल रहा था. तो विद इन दैट टाइम ऑल्सो ही लाइक हेल्प अस कि तुम लोग ये जान लो, ये प्रॉब्लम्स हुआ है, इसको नोट डाउन करो एंड फाइंड द सॉल्यूशंस. तो मेनली उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स, लीडर्स और मतलब नॉलेजेबल पर्सन चाहिए जो कि क्रू को लीड कर सके एकदम ऐसे सिचुएशन में जहां पर चीजें तुम्हारे हाथ से एकदम निकल चुकी है. वो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं. तो वर्क ऑन योर टेम्परामेंट, ये सब लाइक लोगों से बात करना भी एक स्किल है. तो अगर तुम फील्ड जॉब पे आ रहे हो तो फिर ये चीज तो करना कि इंट्रोवर्ट मत रहना, सबसे बात करो, लोगों से बात करके अपने इस वाले पर्सनालिटी को डेवलप करो कि तुम एक पॉइंट पे अगर तुमको कहीं छोड़ भी दिया जाए तुम उनसे बात करके उनसे दोस्ती बना सको. तो वही है. हाँ एग्जैक्टली. लाइक जैसे मेरे केस में जो मेरे मैनेजर हैं वो एक्स लाइक हेड रह चुके हैं वो रिजर्वायर के, लाइक अमेरिकन कंपनी एक मैराथन ऑयल उसके वो थे. एंड ही इज सच है हम्बल गाय कि मतलब उनसे कुछ भी तुम छोटी छोटी चीज पूछोगे तो वो बहुत प्यार से तुम्हें आंसर देंगे. ऐसा नहीं कि तुम तो इतने वो जी वो आईएसएम से हो ये वो तुम्हें ये नहीं आता, मतलब वैसी चीजें हैं. और दूसरी चीजें ऐसी हैं कि अब मेरे काम पे ऐसा होता था कि मुझे काफी चीजें ऐसे कोड में कुछ इश्यूज आ जाते थे, कुछ वेल्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है. सो आई हैव टू सी द कोड टू लाइक इन द बैक एंड और फ्रंट एंड जो भी होता था मेरे को सारे कोड्स देखने पड़ते थे. तो शुरू में अब कहीं वो फंक्शन डिफाइन कर दिया, वो फंक्शन को केवल कॉल कर दिया, डिफाइन कहाँ करा है वो मेरे को नहीं मालूम है. तो फिर आई हैव टू कनेक्ट विद डेवलपर्स, एंड जैसे कि कुछ डेवलपर्स अपने कॉलेज के भी हैं, पर जो सीनियर डेवलपर्स हैं कुछ मैक्सिको के हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ जापान के हैं, तो आई हैव टू कनेक्ट विद देम. सो दे आर ऑल्सो वेरी हम्बल कि लाइक वो एक बार तो ऐसा हुआ था कि शुरू में मेरे को आ ही नहीं रहा था, मैं 3 घंटे काम किया, उसमें मेरे 3 बग्स थे, 2 बग्स फिक्स कर दिए, 1 बग तो फिक्स हो ही नहीं रहा था. फिर मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट में मेरे साथ बैठ के खुद से उन्होंने कोड सही किया था. सो वही है कि तुम थोड़ा हम्बल रहो, चीजों को लेके सीखने का तुम कोशिश करोगे तो दुनिया तुम्हें सिखाने के लिए है, ऐसा नहीं है.
बट वही है कि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा वो होना चाहिए कि सीखना है चीज़ों को, और थोड़ा सा इसीलिए बोला जाता है कि डायनेमिक चीज़ें रखो, थोड़ा सा वही चीज़ें तुम बेसिक पाइथन सीख लोगे तुम्हारे अंदर स्किल्स आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पैदा हो जाती हैं कि भाई तुम कैसे कर रहे हो चीज़ों को, क्या क्या करना है। तो वही चीज़ ओनली कोर लाइक कि अब क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी उस तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन हो चुकी है चीज़ों को डिजिटलाइज्ड करने में, तो तुम्हें भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। तुम ओनली थ्योरेटिकल वे में सोच के चीज़ें नहीं कर सकते हो। एंड वही ये चीज़ है कि यहाँ आके फिर तुम्हें ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने कि भाई जिनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो प्रेडिक्शन जो तुम सोच भी नहीं सकते हो वैसे बता देंगे कि हाँ भाई ये चेक करो, और गलतियां वही निकलेंगी जहाँ वो बोल रहे हैं। लिटरली मतलब देखने से बता देंगे, ग्राफ एनालाइज करके 5 सेकंड में बता देंगे कि ये डाउन हुआ है तो लिक्विड लोडिंग हो रही है, या ऐसा इनका डिक्रीमेंट आया तो ऐसा ऐसा है, ये चेक करवाओ, ये सही करो, इसका वो करो। तो एग्जैक्टली वही चीजें होती हैं। तो वही चीजें अब अगर मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं तो जो मेरे को वर्क करना रहता है वो हमारे कॉलेज में नहीं था, वो जितना सिखाया था मेरे को सारा पढ़ना पड़ा बाहर से लेके, और कुछ सीनियर्स थे उनसे हेल्प मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि 2021 बैच वाले थे गौरव सैनी सर ओएनजीसी में, उनसे हेल्प मांगी काफी, तो तब हुआ। बाकी मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया अभी 3-2 महीने में आके, मतलब बहुत काम पड़ गया। बीच बीच में नई चीजें सीखनी भी थी, उसको इम्प्लीमेंट भी करना था, फिर उसको दिखाना भी होता था। तो हाँ मतलब एक टाइम आएगा सीखने लगोगे तुम लोग तो सीखने लग जाओगे, बट वही है कि थोड़ा सीखने का इच्छा होनी चाहिए अंदर से। सो मेरे केस में ऐसा है कि रिलायंस में रिजर्वायर टीम, इवन इन ड्रिलिंग और किसी भी टीम में जितने भी सीनियर पोजीशंस पे लोग बैठे हुए सारे आईएसएम के। तो मैं पहले दिन जैसे ऑफिस गया था तो मेरी एचआर ने मुझे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट से मिलाया था, और मुझे ये नहीं पता था कि वो आईएसएम से है। और हमारी पहले तो 10 मिनट ऐसे ही बात हुई, थोड़ी सी फॉर्मल बातें हुई, एंड देन वो उसके बाद टी कुमार सर की बातें कर रहे हैं और अजय मंडल सर के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव उपाध्याय सर रिजर्वायर कंसल्टेंट है, रिजर्वायर में उन्होंने पहले भी काम कर चुके हैं, एंड अभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है तो सर से ही बात की जाती है अभी भी। सो ये सब बातें चल रही है, और जितने भी वीपीज है सारे आईएसएम के, सो एंड सारे के सारे हम्बल। तो जब तुम आओगे तो एक चीज देखोगे कि सारे हेल्पफुल है, और कुछ भी तुम्हें डाउट आ रहा है, कुछ भी प्रोजेक्ट में जो तुम्हारा प्रोग्रेस है तुम उन्हीं के पास लेके जाओगे, मेरा ये हो रहा है। फ्यूचर का अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम उनसे पूछ सकते हो। सो ओवरऑल तो सब कुछ ठीक ही होता है। लाइक आई विल सजेस्ट वन थिंग टू, अभी जैसे तुम लोगों की इंटर्नशिप आ रही है, तुम लोग प्रिपरेशन तो करते ही जा रहे हो, बट ऐसा होता है कि खुद से क्या कर रहे हो वो पता नहीं चलता है। मतलब खुद से तुम लोग सोचोगे आज इतना पढ़ लिया तो इनफ है कि नहीं है, वो दूसरे के वैल्यूएशन से पता चलता है। तो मैंने अब कुछ लोग हमारे बैच में कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोग सीनियर्स के पास जाते थे, उनका पैनल होता था 3-4 लोगों का पैनल, जो भी इंटर्नशिप ले चुके हैं ऐसे लोग 3-4-5 लोगों का पैनल होता था कंबाइंड कंपनीज वाला, क्योंकि एक ही कंपनी में रहोगे तो फिर ये लगेगा कि भाई उसी चीज में पूछना है तुम्हें, तो वो सारी चीजों कवर नहीं कर पाते थे। तो ऐसे जो अलग अलग कंपनीज वालों को 5 लोगों को पकड़ा, उनको सीनियर्स को रिक्वेस्ट करी सर आप अगर आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए फ्री हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। देन उनके रूम जाके फिर हम लोग का वो पैनल होता था, फिर वो इंटरव्यू लेते थे। तो मैंने बेकर, शायद मैंने एक्सॉन के लिए तो नहीं किया था, बट बेकर और इसके लिए किया था, सोटाओजी के लिए तो किया था, 2 कंपनीज के लिए किया था मैंने ऐसा। तुम लोग भी ऐसे मॉक इंटरव्यू जैसे कई बार ऐसे सीएससी सोसाइटी करती है, आई गेस कोड आईएसएम ऐसे करता रहा, लास्ट ईयर तो किया था इन लोगों ने। तो वैसे तुम लोग भी कर सकते हो, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो फाइनली तुम लोग की हेल्प करेंगे सीनियर्स, ऐसा नहीं है। बट वही है कि तुम लोग थोड़ा सा बोलो एक बार। ये अभी तो लाइक यही बोलेंगे कि अगर कॉलेज आते वक्त ही आ जाओ तो सही है, क्योंकि सबको कॉलेज आते वक्त फ्री रहते हैं सीनियर्स तुम्हारे, एकदम जब आ रहे हो कॉलेज तो तभी जाके पूछ लो, क्योंकि जितना तुम लेट करोगे प्लेसमेंट सेशन आ जाएगा सीनियर्स का तो वो लोग भी बिजी हो जाएंगे, समझे। तो जो भी करना है यही 1-2 महीने भाई एंड्योर कर लो, लाइक स्प्रिंट मार लो, फिर करते रहना, धीरे धीरे कंपनी आएगी। तो पीपीओ वालों को क्या ही प्रॉब्लम है भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? Okay, seniors. Thank you, seniors. So, anybody else does have a question, then they may ask you by turning their mic on. I don't think so. There are any more questions, sir. So, thank you very much for your in-depth analysis as well as your experiences that you shared and all of your journey that you have gone through. We are really helpful for. We are really grateful to you for giving your invaluable time for today's intern talks, and we hope you have a wonderful day ahead. Thank you, seniors. Thank you very much. Yeah, thank you Om. Thank you everyone. Thanks guys. Bye. चले भाई, कुछ भी अगर ऐसा चल भी रहा है, कुछ डाउट्स वगैरह, अभी तो सबके इंटर्न है, खत्म हो जाए तो पूछ भी लिया करो फोन करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाय गाइस।